एक एडवाइस मैं दूंगा कि व्हेन वी अचीव समथिंग तो खाली उस गोल पे फोकस नहीं करना चाहिए, जो जर्नी थी उसको अचीव करने की, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एंड व्हाट ऑल वी डिड एंड दोज वर द पीपल हु सपोर्टेड देम, अच्छे बुरे में जो साथ दिया, ऑलवेज रिमेंबर दम, क्योंकि वो चीज अगर आप भूल गए तो वो जो अचीव किया उसका कोई मायना नहीं रहेगा। उसका मायना जब भी रहेगा और उस दिन आपको ये फील होगा कि खाली मेरा अकेले का अचीवमेंट नहीं है, ये जो कोर्स ऑफ दैट डूइंग दैट थिंग, वो जितने लोगों का सपोर्ट था सबका अचीवमेंट हो। वो जर्नी बहुत जरूरी होती है। जर्नी जरूरी है। और श्रीमद् भगवत गीता भी ये कहती है कि अगर आप अपने गोल पे ही फोकस करोगे तो फिर वो जर्नी मिस हो जाएगी। यू शुड एंजॉय योर जर्नी। मैं कहूंगा कि एक तो टारगेट होता है, स्टिफ टारगेट आपने बना लिया एंड आप उसमें मेहनत कर रहे हो, जो कर रहे हो, तो somehow आप मेंटली थोड़ा सा उतने खुश नहीं रहोगे जब तक आप 100% मेंटली इन्वॉल्व नहीं हो। यू कांट अचीव दैट टारगेट। ड्रीम्स मेक्स यू हैप्पी आल्सो, बिकॉज बिट्स एंड पीसेस में आपको कुछ अचीव होता रहता है। व्हेन यू हैव अ ड्रीम इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो बिट्स एंड पीसेस आपको मोटिवेट करते रहते हैं। वन डे यू रीच दैट और अचीव दैट ड्रीम। सो इट्स मेकिंग दैट जर्नी हैप्पियर। आज हम जिनके साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो हमारे कॉलेज के डायरेक्टर हैं मिस्टर जयपाल मील सर, और हम उनकी लाइफ के बारे में कुछ इनसाइट्स जानेंगे कि उनकी पास्ट की लाइफ कैसी थी, प्रेजेंट की लाइफ कैसी है और वो कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो आई होप यू ऑल गाइस एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू। Hello everyone, welcome to SKIT podcast, an initiative by SKIT Toastmasters Club. Today we have a very special guest with us who is director of our institute, Mr. Jayapal Meel sir. On the occasion of his birthday, we are going to launch the very first episode of our podcast. Happy birthday sir. Happy birthday sir. Thank you. And this is a small token of love from all the students of SKIT College. You are our icon, sir, and someone we look up to. My name is Jagrati. And I'm Harshit. And today we are here for having a conversation about who you are as a person. Thank you so much, sir, for accepting our invitation and giving us your precious time. How do you feel, sir? I feel delighted and I really happy about your birthday gift which you have presented me today, and very nice initiative, I would say. Thank you so much, sir. Starting with a very basic question, sir. What is the one thing you do in your daily life which makes you happy? When I'm asking this question, I'm asking because we should appreciate small things which makes us happy. So what is the one thing, sir? One thing which makes me happy, I can't say particularly, but I try to follow the routine or whatever the plan I have, and I start my day with some important works listed out and try to complete that by evening or so. If those I can complete those works within day, so it makes me happy. Otherwise, Sir, did you had a kind of a timetable thing in your school days? Yes, I had, but I never followed that. 80% I tried to, but never. Yes, sir. So, sir, my question is, Mr. Jayapal Meel sir, as a director of SKIT College, and Mr. Jayapal Meel sir, as an individual, are these two different personalities? या फिर आप जैसे as a director अपने आप को कैरी करते हैं इंस्टीट्यूट में, क्या आप वैसे as an individual भी हो या फिर कोई different roles, कुछ अलग चीजें आ जाती हैं इन दोनों roles में? Definitely, director of this institute is separate entity, and Jayapal Meel is separate. So when I am within this campus as a director, I am not Jayapal Meel. I have authority and responsibility of director of this institute, and 5,000 students का जो या उनकी expectation जो parents की जो हमसे है, SKIT family से है, तो that I have to fulfill. And out of this campus, I am Jayapal.
Simple Jaipal. That's so humble, sir. There are times when you achieve something really important in your life and it's close to your heart. But sir, कुछ लोगों के लिए ना वो थोड़ी सी छोटी चीजें होती हैं कि क्या अचीव किया, इतनी सी छोटी सी चीज थी. पर सर ऐसी कोई अचीवमेंट जो छोटी थी पर आपको उसको अचीव करने में इतना मजा आया कि आपको बताने में अपने बच्चों को या फिर अपने रिलेटिव्स को बहुत मजा आता है. Achievement छोटा. Actually, when I started my career, I belong to joint family, and when I started my career, and I have mentor in my family, my brother, and I used to follow his footsteps. मतलब भाई साहब कैसे करते हैं, भाई साहब क्या करते हैं, how he visualize the things, and first time मैंने कुछ बढ़िया किया था, and he वो मेरे पीठ पे टैप किया था, तो that really made my day that day. मतलब I'm talking about way back 25 years, I guess. Okay, wow, sir. That's amazing, sir. But I still remember that day, that my idol have मेरे को शाबाशी दी है. That means I have. That's something, sir. सर बहुत मायने रखता है जब हमारे एल्डर्स हमें शाबाशी देते हैं और हमें हमारी पीठ थपथपाते, बहुत अच्छा लगता है, वो याद रहता है. Yeah. सर फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको कॉलेज में देखा था, सर यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद द टीचर्स, एंड सर आई हैव टू से आप बहुत अच्छा खेल रहे थे सर. तो सर आप इन जनरल एज ए क्रिकेट फैन हो या फिर आप जनरली आप स्पोर्ट्स को ही एज ए कैटेगरी बहुत पसंद करते हो या फिर स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व रहते हो सर? See, I firmly believe कि जो स्पोर्ट्स जो भी कोई भी तरह का फॉर्म, कोई भी फॉर्म का स्पोर्ट्स हो, एंड व्हेन वी प्ले स्पोर्ट्स एक कोई भी एनवायरनमेंट में, लाइक अपने SKIT में भी अगर दोज हु आर प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर, फैकल्टी मेंबर्स, एंड वी हैव रियली गुड बॉन्डिंग विद ईच अदर. तो स्पोर्ट एक जरिया है आपको एक टीम बनाने का, एक बॉन्डिंग का, एंड कुड बी एनी स्पोर्ट. मेरे को क्रिकेट आता है इसलिए क्रिकेट खेल रहा था, मुझे बास्केटबॉल नहीं आता, बट मैं मतलब मेरा खेलने का कारण ये था कि एक मैसेज है स्टूडेंट्स को कि स्पोर्ट्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट. तो सर जैसे सबकी कुछ अचीवमेंट्स होती है, मैंने 50 मारी थी, मैंने 100 मारी थी, मैंने 6 सिक्सेस मारे थे, मैंने हैट्रिक ली थी, मैंने सुपर ओवर डाला था. सर आपकी ऐसी कोई अचीवमेंट है जो आपने क्रिकेट खेलते हुए अचीव करी हो और वो बहुत मेमोरेबल हो आपके लिए? यहाँ पे कहीं भी ऐसा तो याद नहीं आ रहा. यहाँ पे एक दो बार टीम को जिताया था, मैन ऑफ द मैच टाइप. हाँ सर आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट 50. तुक्के में जिताया था, बस हो गया था. So amazing, sir. सर हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा बोलते रहते हैं हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हमारे टाइम पे वैसा होता था, हमारे टाइम की अगर पढ़ाई लिखाई अभी चलने लग गई ना तो फिर तुम लोग फेल हो जाओगे सारे. और ऐसा भी बोलते थे कि सर मेरे 91% आए थे, तो फिर बोलते थे 2 स्टूडेंट्स के मिलके इतने मार्क्स आते थे. तो सर आप भी कौन कौन सी ऐसी बातें बोलते थे, अपने बच्चों को बोलते होंगे या फिर अपने स्टूडेंट्स को, जो कि उस टाइम की आपको अच्छी लगती थी? देखो पहले तो मैं ये क्लियर करूं कि ये जो कंपैरिजन करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए. मैं आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज सिनेरियो एंड सिचुएशन सब चेंज है. अगर मैं अपने आप को आपकी सिचुएशन में आज देखूं तो मैं मेरे ख्याल से लास्ट में खड़ा देखूंगा, बिकॉज आई कैन सी दी जो टैलेंट है आज की जनरेशन में, और मैं मेरा टैलेंट अगर मैं कंपेयर करूं वे बैक 20-30 इयर्स बैक, तो मैं लास्ट में हूँ. जो स्मार्टनेस जो आज की जनरेशन में, ये तो रही पहली बात. बाकी कंपेयर करता हूँ कभी कभी बोलने के लिए कि भाई मैं ये करता था, मैं वो करता, खाली उनको मोटिवेट करने के लिए, नॉट टू कंपेयर देम और कुछ नीचा दिखाने के लिए, खाली बताने के लिए, उनको एक बाहर निकालने के लिए कि कम आउट, एंड कोई डरने की बात नहीं है. देखो मैं ये कर जाता था तो तुम कर सकते हो. इस तरह एज ए ट्रिगर आप उनको ट्रिगर करते हैं. यस सर, स्टडीज के लिए भी मोटिवेट करते हैं, तो आपने अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी काफी बार मोटिवेट किया होगा सर? मैंने उनको करके मोटिवेट किया. लाइक मेरे जो बच्चे हैं पहले नहीं करते थे, उन्होंने मेरे को देख देख के सीखा. मतलब आई नेवर टोल्ड देम, खाली उनको 1-2 बार इन्वॉल्व किया साथ में. फिजिकल पहले नहीं कर पाता था, कभी डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्राइब कर दिया, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था. देन आई स्टार्टेड 5-6-7 साल पहले, उसके बाद फिर बंद नहीं किया. तो मेरे को मेरे बच्चों ने देख देख के वो सीखा, एंड दे डू इट रेगुलरली नाउ. और स्टडीज की जहाँ तक बात है तो मैंने उनको कभी फोर्स नहीं किया. मैंने थोड़ा फ्री किया कि बेटा स्टडी इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन खाली स्टडी से काम नहीं चलेगा. यू नीड टू बी ओवरऑल स्मार्ट. यस सर.
सर आप इतने साल से स्टूडेंट्स के बीच में रहे हो, आपने एज एन कैंपस में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करा होगा, उनसे मिले होंगे, बात करी होंगी। सो ओवर द इयर्स आपको कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ लगी जो आपके स्टूडेंट्स के बारे में आपको बहुत प्राउड फील कराती है, और कोई एक ऐसी चीज़ लगी जो आपको देख के लगता है कि नहीं, मेरे स्टूडेंट्स को या फिर इन जनरल स्टूडेंट्स को उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए? नहीं मतलब अपने स्टूडेंट में जो कोई क्वालिटी दिखी, कभी मैंने ऑब्जर्व किया हो। यस सर। देखो ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंट्स तो याद नहीं आ रहा, बट मैं एक चीज थोड़ा फॉलो करता हूँ कि मैं एक इजीली अवेलेबल होता हूँ मेरे स्टूडेंट्स से, कि इस कैंपस में अगर कोई भी आपको अवेलेबल है, यू कैन जस्ट कम डायरेक्टली, और जो भी कोई बात है, मतलब मैं एक ओरा ऐसा नहीं बना के रखना चाहता कि मेरे तक कोई पहुंच नहीं पाए। मैं कुछ इस तरह का करके रखता हूँ तो इजीली अप्रोच करें। बहुत सारी चीजें वो गलत भी लेके आते हैं, देन आई मैं समझा देता हूँ अपनी भाषा में कि दिस आई एम नॉट गोइंग टू डू, ये दीवार हो गए, ये हो गए, वो जो मैं कर सकता हूँ। और बाकी चीजों में अब अचीवमेंट ऐसा तो मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। सर आपने ऑरा की बात करी, सो हाउ डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड गॉड? यस, फर्मली। आप मेडिटेट करते हैं सर? मेडिटेट कर नहीं सकता, कभी कभार कोशिश करता हूँ आंख बंद करके ऐसे करने की, कर नहीं सकता। सर इट रियली हेल्प्स। Sir, we all know that no matter how many times we say that, but we actually being like an adult or we like to be a mature person. पर सर स्कूल डेज के टाइम हमें बहुत याद आता है, कॉलेज डेज के टाइम में बहुत याद आता है कि उस टाइम पे हम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। सर अगर मान लिया जाए कि अगर आपका एक स्टूडेंट के साथ रोल स्विच कर दिया जाए कॉलेज में, एक दिन के लिए आपको स्टूडेंट बना दिया जाए और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक डायरेक्टर बना दिया जाए, तो सर आप पहली चीज क्या करना चाहेंगे, या फिर कोई ऐसी भी बात बोल सकते हैं जो मिस्चीवियस हो? पहली चीज, पहले तो कैंटीन में बैठ के गपशप मारूंगा तो शायद गेट के दयानंद जी से बच के कूद के भागने की भी कोशिश करूंगा, खाली समझने के लिए कि ये बच्चों की क्या है, मतलब। अच्छा। स्कूल डेज में मैंने किया हुआ है एक दो बार। अच्छा। तो कुछ मार पड़ते पड़ते बची थी, आज दोबारा करके देखेंगे क्या मिलता है। सब बच्चों को रोक रोक के थक गए, लेकिन फिर भी कूद कूद के जाते हैं। अच्छा, वो क्या मजा आता है एक छोटी चीजें करने में। सर बैक बेंचर्स की कोई स्टोरी कि आप कभी बैक बेंचर है या फिर आपका कोई दोस्त? नहीं, मैं बैक बेंचर ही था। अच्छा। स्टोरी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बैक बेंचर्स नॉर्मली बदमाश होते हैं। एंड मैं बैक बेंचर जरूर था, लेकिन मैं भोला भी था स्कूल में। अच्छा। तो मेरे को एक बार मेरे फ्रेंड्स बंक करके ले गए थे कहीं, एंड वहां पे कोई फैमिली मेंबर्स ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ी थी। डांट नहीं, उस टाइम कुछ और ही पड़ता था। दैट्स अमेजिंग सर। सर हर किसी की लाइफ में एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, आई फर्मली फॉलो दैट फेक स्माइल इज बेटर देन नो स्माइल। यू शुड ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज वो आपकी पॉजिटिविटी में बहुत हेल्प करती है, आपको एक पॉजिटिव अप्रोच प्रोवाइड करवाती है, और इट एक्ट एज अ शील्ड फॉर नेगेटिव एनर्जी। तो आपका कोई ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल जो आपको किसी बुक से मिला हो, किसी टेक्स्ट से मिला हो, या फिर आपको एक ऐसा स्टेटमेंट जो आप हमेशा फॉलो करते हो, आपको लगता है कि नहीं, दिस इज द कोर वैल्यू ऑफ माई लाइफ? मैंने आई बिलोंग टू, मैंने बताया ना कि परिवार से, तो Yes, sir. मेरे घर में 25 एग्जाम्पल हैं जिनको मैं देख देख के बड़ा हुआ हूँ, उनसे बहुत सारी चीजें सीखी है, एंड आई ट्राई टू फॉलो दैट। जब मैं पर्सनल करियर की बात हो रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्क, देन पेशेंस, ये कुछ दो एक बेसिक चीज है। बोलने में 25 बार बोलते हैं, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं आउटकम आता है ऐसे। और परसिस्टेंट आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, देन यू अचीव समथिंग। तो कुछ ऐसी चीजें, बाकी डे टू डे में बहुत सारी चीजें इंस्पायर करती है, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, देन ओनली यू कैन रिमेम्बर दैट। सर आप बुक्स पढ़ते हैं सर? बुक्स नॉट मच। मूवीज भी देखता हूँ तो खाली टाइम पास के लिए। अच्छा सर, श्रीमद् भगवत गीता कभी आपने सोचा है कि आपको पढ़नी चाहिए, या फिर आपने सुना हो उसका? नहीं, सोचा है पढ़नी भी चाहिए। बहुत सारी चीजें आती है, कुछ अंश जो उनके होते हैं, जो ऑडियोज आते हैं, उन अंश को मैं कई बार सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ इम्प्लीमेंट भी करने की, हो नहीं पाता। लेकिन सर कोई एक ऐसा लेसन जो आपने श्रीमद् भगवत गीता के किसी अंश से सुना हो और आपको बहुत पसंद आया हो? अभी तो ऐसा कुछ याद नहीं है।
सर प्रवाह वाले दिन हमें याद आता है कि हम लोग ना आपके पास एक इनविटेशन कार्ड लेके गए थे भागीरथ का, हमने एक इनविटेशन कार्ड बनाया था सर। हमें याद है आप सर एडमिशन ब्लॉक के इधर पे मिले थे, सर आपने पूरा कार्ड रीड किया था और आप हमारे साथ बात किया, आपने पूछा क्या क्या बनाया है, सब कुछ चीजें पूछी सर। तो वो एक कामनेस, वो आपका एक नेचर जिसमें आप बैलेंस बना के चलते हैं हर चीज का, कि बच्चों के साथ कैसे डील करना है कैसे नहीं डील करना है, क्योंकि सर काफी बार मुश्किल हो जाता है अपनी हायर अथॉरिटीज से भी बात करना, लेकिन आपने जैसे बताया आप एक्सेसिबल होते बच्चों के लिए, आप उनके लिए हर हमेशा अवेलेबल होते, तो एक वो नेचर कैसे मेंटेन करके चलते हैं सर? नेचर कभी बनाया नहीं जाता, वो जो था। लाइक मैं अगर आज आप इफ यू से कि मैं कोई डायरेक्टर या बहुत हायर अथॉरिटी हूँ, तो आई एम नॉट दैट। मैं ये फैमिली का अचीवमेंट है, ये जो मैं यहाँ खाली एक जिम्मेदार मेंबर ऑफ फैमिली बैठा हूँ, और ये कोई मेरा कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं लगता। जहाँ तक नेचर की बात है तो ये फैमिली का है, हमारे जो भी घर में बड़े बूढ़े जो भी होते हैं, ये चीज़ बेसिक समझाई है कि कभी ऐसे नहीं करना है, लेवल चलना है। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो यू आर एसकेआईटीज़ ब्रांड एम्बेसडर। आज नहीं तो कल कहीं जाके हमारा ही नाम रोशन करोगे। तो आज अगर मैं थोड़ा ताव में बैठूंगा तो कल को आप लोग मेरे को नहीं मिलोगे। यस सर। तो सर वो एक छोटी सी एडवाइस या फिर कुछ कि बच्चे बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं लाइफ में, लेकिन सर फिर कुछ जो उनके नीचे काम करते हैं या फिर ऐसे जैसे आपने अपने अंदर रखा नेचर, हमें पता है कि हमें नहीं बिल्ड कर सकते, बट वो एक हम अपने बिहेवियर में तो ला ही सकते हैं कि हम अपने छोटों को कैसे ट्रीट करें या फिर हमारे नीचे वाले पोस्ट को कैसे ट्रीट करें। सर एक एडवाइस। एक एडवाइस मैं दूंगा कि व्हेन वी अचीव समथिंग तो खाली उस गोल पे फोकस नहीं करना चाहिए, जो जर्नी थी उसको अचीव करने की, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एंड व्हाट ऑल वी डिड एंड दोज वर द पीपल हु सपोर्टेड देम, अच्छे बुरे में जो साथ दिया, ऑलवेज रिमेंबर देम। क्योंकि वो चीज अगर आप भूल गए तो वो जो अचीव किया उसका कोई मायना नहीं रहेगा। उसका मायना जब ही रहेगा और उस दिन आपको ये फील होगा कि ये खाली मेरा अकेले का अचीवमेंट नहीं है, ये जो कोर्स ऑफ दैट डूइंग दैट थिंग, वो जितने लोगों का सपोर्ट था सबका अचीवमेंट है। तो जर्नी बहुत जरूरी होती है, जर्नी जरूरी है। और श्रीमद् भगवत गीता भी यही कहती है कि अगर आप अपने गोल पे ही फोकस करोगे तो फिर वो जर्नी मिस हो जाएगी। जर्नी मिस हो जाएगी। यू शुड एंजॉय योर जर्नी, यू शुड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ जर्नी, बिकॉज़ जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मेक्स यू हैप्पी। दैट मेक्स यू रियली आप अगर प्रेजेंट में रहोगे और जो कुछ आप कर रहे हो, जैसे अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, एंड इफ आई एम हैप्पी अबाउट इट तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कल को ये कैसा जाए, अच्छा जाए बुरा जाए, वहां फोकस करूंगा तो आज रह जाएगा। हाँ सर, एक्चुअली एक किताब में मैंने पढ़ा भी था, उसके अंदर 7 सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स का जिक्र किया गया था, एंड इसमें 7 था मैजिक, एंड द मैजिक वाज अबाउट द मैजिक ऑफ प्रेजेंट। जिस प्रेजेंट मोमेंट में हम है, मैजिक एक्चुअली इसी मोमेंट में लाई करता है। तो अगर आप इस मोमेंट को बहुत अच्छी तरह जीते हो तो आप फ्यूचर की टेंशन मत करो, वो आएगा जैसे आएगा, बट जो प्रेजेंट मोमेंट आपने मैजिक के साथ जिया है ना, दैट विल मेक यू हैप्पी इन फ्यूचर। So, and so now my question is very simple sir. हम सब के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं सर। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं एज अ पर्सन सर, मेरा जो एंगर है इज नॉट एंगर। आई डोंट क्राई व्हेन आई एम एंग्री। मैं बिल्कुल वॉल्स को पंच भी नहीं करता हूं सर, खुद को ही लग जाती है सर। व्हाट आई डू, आई गो साइकोपैथ। मतलब जैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज में होते हैं विलन्स, उनके बिहेवियर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, दे आर क्रेजी। तो आई गो लाइक, मैंने एक दिन ऐसे व्हेन आई वाज एंग्री, मैंने स्टूल लिया और मैं स्टूल को पेंडुलम की तरह घुमा रहा हूँ पूरे घर में, बीच में खड़ा होकर हॉल में। सो दीज थिंग्स आर अनएक्सप्लेनेबल येट अमेजिंग अबाउट यू। तो आपके बारे में कोई एक ऐसी चीज जो अमेजिंग हो और लोगों को सुन के लगे कि ओके आप ऐसा भी करते थे? मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। कोई चीज मेरे को बोल दो और हुई नहीं, हालांकि आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो आज भी मेरे घर में यही है कि अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो नॉट टू ब्लेम, ये भूल जाता है। तो ये कुछ वो है। बाकी गुस्सा तो नेचुरल चीज है, तो अगर कोई चीज फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा आता है, लेकिन आई डोंट शो दैट मच। डरता हूँ अपने गुस्से से, इसलिए थोड़ा। सर आज जैसे हमने भुलक्कड़ की बात करी, सर मैं मेरा इंसिडेंट बताता हूँ। सर मेरी आदत है, मैं चश्मा हमेशा खो देता हूँ। तो जब भी मैं घर पे होता हूँ, मैंने एक जगह फिक्स करी थी कि नाउ मैं चश्मा यहीं पे रखूंगा। थोड़ी देर बाद मैं वो जगह भूल गया सर कि मैंने उस जगह कहाँ फिक्स करी थी कि मैं वो चश्मा रखूंगा, और फिर वो चीज कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई सर। नहीं, वो मेरी एज में आओगे जब तक हो जाएगी। तो मैंने भी उस टाइम स्टार्ट किया था, अब मैं जगह फिक्स करके रखी है
कि यहाँ ये रखना है, यहाँ ये रखना है। तो प्रॉब्लम जगह में नहीं सर, जैसे मैंने सोफे पे रखा और मैंने सोच लिया कि यही जगह है। अब मम्मी को वो जगह पसंद नहीं आती, वो कहती है कि गिर जाएगा, टूट जाएगा। अब मम्मी को पता नहीं दूसरी जगह रखूंगा, फिर मैं भूल जाऊंगा। सर ऐसे बहुत फनी इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर घर पे भी, स्कूल में, कॉलेज में। अभी भी जब मैं स्कूल डेज को याद करती हूँ ना सर, बहुत ऐसे फनी इंसिडेंट्स याद आते हैं। सर हम लोग ऐसे करते थे, एक लड़की बैठी उसके ऊपर एक लड़के, और सर फिर गिरते थे टावर बना के। मतलब इतनी छोटी छोटी हरकतें करते थे कि जिनसे बहुत मजा आता था स्कूल डेज तो में। वो अगर छोटी हरकतें नहीं की होती नहीं करेंगे तो सर, तो कोई आपका एक इंसिडेंट थोड़ा सा ब्रीफ में सर, कि मैंने कोई ऐसी एक्टिविटीज, और हमें पता है लड़के तो स्कूल में? बहुत। यस सर। स्कूल में तो देखो बहुत स्ट्रिक्ट होता था स्कूल, बहुत वो हमारे प्रिंसिपल बड़े, तो स्कूल में तो इतना कुछ नहीं होता था। मोहल्ले वगैरह में, मैदान में मैं क्रिकेट खेलता था। हाँ, सोसाइटी में वहाँ सब किया हुआ है। कोई तो सर कोई एक ऐसा इंसिडेंट? हमारे एक टूर्नामेंट किया था हमने फुटबॉल का, एंड हम लोग मोहल्ले की टीम बना के जस्ट ऐसे करके ऑर्गेनाइजर थे, हमारी भी टीम बना ली और एक फुटबॉल टूर्नामेंट अरेंज किया। तो हमने क्या किया कि वो जो हमारा ग्रुप था उसमें जो भी टीम एब्सेंट होती थी उसका हमारे अगेंस्ट लगा के हम पास करके हम सीधा सेमीफाइनल तक पहुंच गए। सेमीफाइनल या आई गेस फाइनल तक पहुंच गए बिना खेले। एक पास का सिस्टम होता था कि ये नहीं खेले तो हमारा था। और दूसरी टीम जो सामने से आई थी फाइनल में, वो पूरा खेल के आई थी। और जब हम फाइनल मैदान में बैठे थे, गए खेलने, तो जब हम आमने सामने खड़ी हुई टीम, तो दिन रात का फर्क था। हमारे किट्स भी प्रॉपर नहीं थे और सामने पूरी टीम थी, और हमको लगा कि भाई आज तो हमारा एक 12th मैन था जिसको हमने पूरे टूर्नामेंट में नहीं खिलाया। अच्छा। अजय नाम था उसका। उस दिन हमने उसको कप्तान बना दिया कि अजय आज तू संभाल। और मिडफील्डर भी वो था, फॉरवर्ड भी वो था, बैक भी वो था, और हम सारे साइड में से स्पेक्टेटर्स थे। और जस्ट ऐसे करके वो मैच हम सिर्फ 10 गोल से हारे। और सब साबुत घर पहुंचे। और हम शाम को अजय को जब मिलने गए तो आंटी ने हमको जूतों से मारा क्योंकि वो पूरा ऊपर से नीचे तक जख्मी था। तो एक कहने का मतलब, एक आदमी को ऐसे उठा के पेश कर दिया कि बस तू ही है जो फुटबॉलर है, हमको तो आता ही नहीं कुछ। और वो सबका एक, सबने एक मिल के एक साथ उसको बनाया था, तो उसको एहसास भी नहीं हुआ। सर उन्हें लग रहा होगा कि मुझे बना दिया, वाओ इतना अच्छा है, मैं करूंगा, खेलूंगा, उस चक्कर में। स्पोर्ट्स बहुत मेमोरी देता है सर। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं हॉकी खेला करता था, तो एक बार हम लोग खेलने गए थे, इट वाज इन क्लस्टर। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे लाइन से वॉशरूम्स होते हैं, वहाँ लाइन से बात करते सब। तो वहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट, मेरे दोस्त था अंकित झाकड़, ही वाज वेरी मिस्चीवियस। तो वो क्या कर रहा था, सब पे पानी फेंक रहा था। अब हुआ ये कि सब पे पानी फेंका, सबको गुस्सा है। अब सबने डिसाइड किया कि सब लोग आजू बाजू वाले में जाएंगे एंड सब उसके ऊपर पानी फेंकेंगे। एंड किसी ने नोटिस नहीं किया कि थोड़ी देर पहले वो वहां से जा चुका था। उसकी जगह दूसरी टीम के कोच साहब अंदर चले गए थे। सबने ठंडे पानी की बाल्टियां भरी सर, और ठंडे पानी की बाल्टियां एक साथ कोच साहब पे डाल दी। उसके बाद कोच साहब जो चिल्लाए, हम सब कोच साहब चिल्लाए कि कौन कर रहा है ये। और फिर हम सब ने देखा ये तो अंकित की आवाज नहीं थी। हम सब बाथरूम से निकल के भागे, सब भागे। एक जना रह गया था पीछे, उसको पकड़ा। अंधेरे में जो टॉवल डाल के बाद में निकालते हैं, कौन है टॉवल में? सर मारते फिर पूछते किसने पहले मारा, ये वाला भी होता है सर। लाइट बंद करके। हाँ ये सर वो भी कहते थे सर। जाते थे ना जब टूर्नामेंट्स के लिए या फिर हॉकी के लिए सर, स्पोर्ट्स में मैंने भी हॉकी प्लेयर रही हूँ, तो मैंने भी हॉकी खेली। तो हम नाइट स्टे तो नहीं रहा, बट ऐसे ही मजे करते थे ना सर। तो लाइट वाइट बंद करके सब बहुत मस्ती जरूरी भी। हाँ यस सर। सर स्पोर्ट्स खेलने से पहले एक बार मूड में आना पड़ता है। यू हैव टू बी इन द जोन, जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत खुले हुए हो। बिकॉज सी स्पोर्ट्स आपको वही चीज सिखाती है कि आप, इनफैक्ट मैं स्टूडेंट्स को आज भी बोलूंगा कि जो आज की आपकी जो ये जर्नी है बीटेक की, इसमें डोंट लिमिट योरसेल्फ कि 2 या 3 फ्रेंड्स है। आप उसको एक बड़ा सर्किल बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर एक की अलग अलग क्वालिटीज होती है, कोई किसी में अच्छा, तो एक सर्किल बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे 4 दोस्त थे कैंपस में, यहाँ 400 दोस्त होने चाहिए। यस। तो ये सीखने की बात है। आप अभी भी अपनी पुरानी टीम से कनेक्टेड हैं सर? बिल्कुल।
कभी इनफैक्ट पुरानी से भी कनेक्टेड हूँ, नए भी जहाँ मौका मिलता है, आज भी जो इधर उधर एक सर्किल ही होता है। आज मैं अगर मेरा दिन स्टार्ट करता हूँ तो आई गो टू सेंट्रल पार्क, और वहाँ कई बार मैं जाऊँ तो वॉक नहीं भी करूँ तो चलेगा, लेकिन वहाँ जो एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, वहाँ बैठ के हम 10 मिनट अगर गपशप मारते हैं तो इट मेक्स माई डे। एंड उस स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वहाँ होता है, उसका डे का स्टार्ट यहाँ से होता है कि भाई ठीक है घर गए, नाउ स्विच ऑफ। सो फ्रेंड्स के जब अपन साथ में होते तो एक उनका जब और लाइट मोमेंट जो होता है, फिर उसी से अपना पूरा डे एक्सेलरेट होता जाता है। सर आपके बारे में जब मैं टीचर्स से बात कर रहा था कि जब मुझे पता चला कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू यू, तो मैंने टीचर से पूछा आपके बारे में कि डायरेक्टर सर के बारे में बताना, तो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग सा फ्रेज सुनने के बारे में मिला सर आपके बारे में। आप गैस कर सकते हैं सर कुछ? फैसिनेटिंग अबाउट मी? सर फैसिनेटिंग है सर, बहुत कमाल का फ्रेज है सर। सर आपके लिए एक टाइटल दिया है सर आपको एक। अच्छा सर, आप MS धोनी को जानते हैं सर? हाँ। उनको क्या कहते हैं लोग? माही? नहीं सर, एज एन जब वो कैप्टन थे सर, एक टाइटल उनको जो दिया हुआ है फैंस के द्वारा, सबके द्वारा, सर कैप्टन कूल। कैप्टन कूल। यस सर। आपके बारे में जब मैंने टीचर से पूछा, मैंने यही चीज सुनी दैट ही इज आवर कैप्टन कूल। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय टीम, आई वुड से। यस सर। टीम अच्छी है तो कैप्टन कूल ही रहेगा। सर वो सीक्रेट रेसिपी क्या है सर आपकी जो आपको कैप्टन कूल बनाती है कॉलेज? मेरी कोई रेसिपी नहीं है, मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ, बस टीम एक्सीलेंट है मेरी। सो दैट्स वेरी अमेजिंग बिकॉज़ मोटिवेटेड टीम है तो सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज इस पे भी डिपेंड करती है, आप अपनी टीम पे ट्रस्ट करते हो। 100%। यस सर, काफी बार ऐसे भी होता है हम लोग प्रोजेक्ट करने जाए या फिर कुछ भी करें, ग्रुप प्रोजेक्ट भी करें ना सर, काफी बार होता है कुछ लोग किसी पे अगर ट्रस्ट नहीं करते हैं, टीम लीडर ही नहीं ट्रस्ट। टीम जब परफॉर्म करती है व्हेन प्लेटफॉर्म इज रेडी, यस सो मेरा पूरा फोकस प्लेटफॉर्म पे रहता है, हाउ टू मेक थिंग्स कंफर्टेबल फॉर देम। कोई भी जो डेवलपमेंट जो भी होता है, वेदर इट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या कोई भी एकेडमिक भी देखें या इस तरह के स्टूडियोज देखें, तो आई ऑलवेज फोकस ऑन मेकिंग बेस प्रॉपर सो दैट माय टीम कैन एक्सेल। यस सर। तो एज ए लीडर जब आप अपने आप को अप फ्रंट रखते हैं तो क्या क्या चीजें आप अपने दिमाग में रखते हैं कि आपकी टीम फॉल अपार्ट ना हो, आपकी टीम एक अच्छा एक आउटपुट ला सके? और आप एज ए लीडर जब होते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है सर कि मुझे कैसे सोचना है, अगर कोई एरर होता है, कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल करूंगा, या फिर मेरी टीम पे कुछ इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इट हैज़ टू बी मी हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर क्या चीज़ें होती है जो आप हमेशा अपने दिमाग में रखते हो टू बी एफिशिएंट लीडर? सी पहला तो मैं जो मेरी टीम की जो वर्किंग है वो स्मूथली चल रही है कि नहीं, whether they are facing any problem or not, and how I can overcome that problem. और दूसरी, whenever it's done, I make sure कि वो जो credit जो उनको मिलना चाहिए, they get that credit. It's amazing, sir. So for the further activities and motivation. That's a really inspiring session, sir. आपको कैसा लगा सर यहाँ पर बात करके? और Amazing, and I really wish कि ये आपका जो प्लेटफॉर्म आज चालू किया है, and the initiative you have taken, it's really amazing. And जो भी dynamic personalities जो विजिट करेंगे हमें आजकल, अब से पहले खाली हमारे पास खाली एक फोटो या कुछ remembrance के लिए कुछ फोटोज होती थी उनकी, and now we'll have 10-15 minutes of chit chat. That will, हमारी भी मेमोरी रिमाइंड करने के लिए ठीक रहेगा, एंड इनफैक्ट those personalities, those who are going to visit us, उनको भी एक रहेगा तो they'll remember this कि we visited SKIT, and I really wish you all the best and good initiative. Sir, before we wrap up, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप ड्रीम्स को कैसे देखते हैं सर? आपके लिए ड्रीम क्या चीज़ है ना? बिकॉज सर लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ड्रीम्स आर जस्ट स्कैम, आपको एम बनाना चाहिए अपनी लाइफ में, और कुछ कहते हैं ड्रीम्स आर समथिंग विच यू हैव। सर पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ अगर आप कहे तो। सर व्हेन आई वाज अ किड, तो हमारे घर पे ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी सर, पैसे की प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। सर मेरे पापा ने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करा था। पापा बताते हैं कि दे यूज्ड टू लिव इन अ सिंगल रूम, वहाँ पे 6 सिबलिंग्स हुआ करते थे वो विद देयर पेरेंट्स। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर शादी हुई, एक वही छोटा सा घर था, फिर पापा ने एक स्कूल चालू करी, कैसे जैसे स्टार्ट करा। तो वहाँ पे ना सर मैं छोटा था तो आई यूज्ड टू सी कार्स को सर्व करना, किसी कार की
फोटो क्रॉप करके रख ली, उसको कॉपी में पेस्ट करा, हमेशा ये सोचा कि कार के मॉडल्स के बारे में सर्च करूँ। तो एक बहुत अमेजिंग सा, मेरा फैसिनेटिंग सा ड्रीम था। फिर जब बड़े हुए, जब चीज़ें अच्छी हुई, पापा का वर्क अच्छा चलने लगा, मम्मी की जॉब लगी, उसके बाद सर रिसेंटली जब पापा ने अपनी गाड़ी ली, फर्स्ट लग्जरी कार जब पापा ने ली ऑडी, तो लाइक जनरली सब पापा साफ कर रहे थे, उसको कहीं जा रहे थे, एंड मैं गेट खोल के आगे वाली सीट पर से बैठा, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग। तो पापा मेरे पास आके बोलते हैं, तेरे को पता है जब तू छोटा था ना, तो तू कार्स की फोटो देखा करता था, उनको सर्च करा करता था, उनके बारे में पढ़ा करता था। तेरे को पता है कभी कभी मुझे लगता है कार तेरी वजह से आई है, क्योंकि तूने वो ड्रीम देखा, तुझे वो चाहिए थी, और वो चीज कहीं ना कहीं मुझे लगी, डेस्टिनी मुझे लगी। सर वो कार एक दिन खराब होगी, बट वो फीलिंग जब पापा ने मुझे कहा था, सो दैट इज समथिंग विच, जब मुझे लगा कि नहीं, ड्रीम्स देखना जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि सच में ड्रीम्स देखना जरूरी है? डेफिनेटली ड्रीम्स देखना बहुत जरूरी है, और आपको ट्रिगर करती है वो ड्रीम्स। मैं कहूँगा कि एक तो टारगेट होता है, स्टिफ टारगेट आपने बना लिया, एंड आप उस पर मेहनत कर रहे हो, जो कर रहे हो, तो somehow आप मेंटली थोड़ा सा उतने खुश नहीं रहोगे जब तक आप 100% मेंटली इन्वॉल्व नहीं हो। यू कांट अचीव दैट टारगेट। ड्रीम्स मेक्स यू हैप्पी ऑल्सो, बिकॉज बिट्स एंड पीसेस में आपको कुछ अचीव होता रहता है। व्हेन यू हैव अ ड्रीम इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो बिट्स एंड पार्सल आपको मोटिवेट करते रहते हैं। वन डे यू रीच दैट और अचीव दैट ड्रीम। सो इट्स making that journey happier and achieving that target or rather dream. तो ड्रीम तो देखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूँगा सबको ड्रीम देखनी चाहिए, अच्छे बुरे जो भी है। सर हमारा भी ये पॉडकास्ट शूट करना एक ड्रीम जैसा ही है, आपसे बात करना, आपके बारे में जानना, और सबसे खास बात हमारे ऑडियंस को पता चलेगा आपके बारे में थोड़ा ज्यादा, जिनको नहीं पता है थोड़ा और ज्यादा पता चलेगा आपकी लाइफ में, आपकी पास्ट लाइफ के बारे में। बहुत ही इंस्पिरेशनल सेशन था सर, बहुत कुछ सीखने मिला, और आई होप ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। वेलकम। और एक मैं मैसेज देना चाहूँगा मेरे ऑडियंस को कि जो आप मेरे को कह रहे हो कि अचीव किया, ये किया, मैं एक बेस बताता हूँ कि मेरी जो फैमिली का जो पैटर्न है, विच इज़ वेरी यूनिक नाउअडेज। 50 जनों का परिवार है, एंड एवरीथिंग इज ओन्ड बाय एवरीवन। मतलब मेरी चीज़ मेरी नहीं है और सबकी है। वी शेयर एवरीथिंग और अनडिवाइडेड वी है। तो वो जो सिनेरियो है वो हमको एक्सेल करने के लिए मौका देता है। मेरे अगर कनेक्शन आज है तो वो into 50 है। आज अगर कोई एक आदमी का कोई कनेक्शन होता है, आज की तारीख में कनेक्शन से काम होता है, तो मेरे कनेक्शन माइन into 50 है, विच रियली हेल्प मी टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। तो परिवार सबसे जरूरी होता है, परिवार के बाद में आप आगे निकल के जाते हो। तो एक परिवार की बात बतानी थी। और जो आप मेरे को कह रहे हो ये अचीव, ये मेरे अचीवमेंट नहीं है। मैं जयपाल मील एज एन डायरेक्टर नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे परिवार का है। तो मैं उस क्रेडिट को नहीं लेना चाहूंगा कि Definitely. So that's the quality of a good leader, sir. Thank you so much. Thank sir. you so much. Thank you so much for your time, sir. Thank you so much. तो ये थे हमारे सबसे पहले गेस्ट मिस्टर जयपाल मील सर। इनसे बात करके, इनके बारे में जान के हमें बहुत मजा आया, और बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है, बहुत डाउन टू अर्थ है। जैसे कि सर ने बताया कि वो बहुत अप्रोचेबल है, तो एज ए स्टूडेंट हमें भी लगता है वो है। इसी तरह की स्टोरीज, इसी तरह की कहानियां, इसी तरह की पर्सनैलिटीज को हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फॉलो कीजिए और बी अमेजिंग, बी ऑसम एंड फॉलो SKIT पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।